السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام سر، اللہ کا شکر، آپ سنیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی ڈاکٹر صاحب، تیاری شیاری بھی کر رہے ہیں؟ جی جی سر، ان دنوں اصل میں ہاسپٹل سے آف ہے نا، وہ میرا جو اونر ہے نا ہاسپٹل کے، ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا نا۔ پتہ نہیں آپ نے اسٹیٹس میرا شاید نہیں دیکھا۔ اچھا، تو پھر ہاسپٹل بند کر دیا آپ لوگوں نے؟ ہاسپٹل ہم نے بند کر دیا ہے، تو ابھی کل ان کا جنازہ، تو آج ہی میں سارا دن بیٹھ کے اپنا وہ فارمیسی والے ہی ہے نا، کیونکہ اس کے ٹینٹیٹیو جو ڈیٹ ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ کنفرم ہوگی، آپ بس تیاری رکھیں۔ تو چلو، بس وہ انشاءاللہ جو ہے، آج میں نے فارمیسی کا تقریباً جو ہے وہ 60% جو تھا نا سلیبس، وہ میرا کمپلیٹ ہو گیا، 60 سے 65%۔ تو بس اسی میں لگا ہوں۔ کل آپ کیا کہ اسلام آباد کا چکر ہے، کل آپ اسلام آباد جانا ہے؟ کل اسلام آباد جا رہے ہیں؟ ہاں بس وہ بتایا نا، جو کیا کہتے ہیں، وہ ان کا انتقال ہو گیا نا، والدہ ان کی کا، تو وہ اسلام ہوں، آباد رہتی تھی نا، تو جنازہ وغیرہ وہاں پر ہی ہے دوپہر کو کور کے بعد۔ اچھا، پھر صحیح صحیح۔ صبح جو کیا کہتے ہیں، ہمارا کیا ہاسپٹل کا سارا اسٹاف ہے، وہ اور سارے مل کے جو کل اب انشاءاللہ ہم جائیں گے صبح خیر ہی۔ اچھا، جی صحیح۔ جی ربیہ بھی آ چکی ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی آ چکے ہیں، یاسمین بھی آ چکی ہیں۔ جی آپ لوگ کتاب کھول لیں۔ کل ہمارے مرفوعات ہو گئے تھے۔ آج ہم منصوبات شروع کرتے ہیں، منصوبات کا بیان، ٹھیک ہے؟ منصوبات دیکھیں، منصوبات 12 ہیں۔ منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ مرفوعات کتنے تھے؟ 8۔ یعنی کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سے اسماء ہیں جو حالت رفع میں ہوتے ہیں، جو جہاں بھی آئیں گے، مثال کے طور پہ فاعل ہے، جب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا اعراب مرفوع والا ہوگا، حالت رفع میں ہوگا۔ اس طریقے سے منصوبات کا بیان ہے۔ منصوبات کا بیان یعنی وہ چیزیں جو حالت نصبی میں ہوتی ہیں، ہمیشہ جو چیزیں حالت نصبی میں ہوتی ہیں، منصوبات۔ منصوبات 12 ہیں، مرفوعات 8 تھے، منصوبات 12 ہیں، مجرورات آگے 2 ہی آ جائیں گے وہ انشاءاللہ۔ تو منصوبات دیکھیں، پہلے ان کے نام دیکھ لیں۔ نمبر 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول به، نمبر 3 مفعول فیہ، نمبر 4 مفعول لہو، نمبر 5 مفعول معہ۔ یہ سارے مفاعیل ہیں، اس 5 مفعول ہیں۔ نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 مستثنا، نمبر 9 افعال ناقصہ کی خبر، نمبر 10 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، نمبر 11 حروف مشبہ بلیسا کی خبر، اور نمبر 12 لائے نفی جنس کا اسم۔ یاد کرنا آسان ہے، پہلے تو 5 کے 5 کیا ہیں؟ مفعول ہیں۔ مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول بھی، مفعول معہ، مفعول لہو، یہ 5 تو مفاعیل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور آخری کے جو 4 ہیں وہ وہی ہیں جو مرفوعات میں آئے تھے۔ مرفوعات میں اس کا عکس ہوگا، مثال کے طور پہ وہاں تھا افعال ناقصہ کا اسم، وہ مرفوع ہوگا۔ یہاں چونکہ نصب کی بات ہو رہی ہے تو افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، حروف مشبہ بلیسا کی خبر، لائے نفی جنس کا اسم۔ یہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہے، ہم وہاں تھا لائے نفی جنس کی خبر کیونکہ وہ مرفوع تھی۔ تو بیچ میں 3 چیزیں نہیں آئی ہیں، حال، تمیز اور مستثنا۔ حال،
तमीज और मुस्तस्ना। शुरू में 5 मफाइल हैं। एक दफा कोई सुना दे मुझे, शाबाश। मफूले मतलब, मफूले बिही, मफूले फीही, मफूले लहू, मफूले माहू, हाल, तमयीज, मुस्तस्ना, अफ़ाल नाक़िसा की खबर, अफ़ाल मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म, हुर्फ़ मुशब्बह बिल इस की खबर, ला नफ़ी जिन्स का इस्म। शाबाश। ये कौन है, इतनी स्पीड लगाई इन्होंने, माशाल्लाह, याद भी कर लिए। सर आपने पहले ये सब समझा के याद करवा दिए थे। अच्छा, ये याद करवाया हुआ है। जी सर, लिखवाया भी है, मैंने तो लिखा हुआ भी है इसके ऊपर, ये आपने पढ़ाया है। अच्छा, हाँ सही है, सही है। जब हमने, फिर तो मुदस्सिर भाई सुना दें, शाबाश। यास्मीन भी सुना दें, डॉक्टर साहब भी सुना दें। जी सर, मफूले मुतलक, मफूले बिही, मफूले मफूले मुतलक, मफूले मुतलक, मफूले बिही, मफूले फी, मफूले लहू, मफूले माहू, हाल, तमीज, मुस्तशना, अफ़ाल नाक़िसा की खबर, हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल का इस्म, और मुशब्बा बिलैसे की खबर, और लाए नफी जिन्स का इस्म। जी यास्मीन, आप भी सुना दें। मफूले मतलब मुतलक, मफूले बा, मफूले फीही, मफूले लाहू, मफूले माहू, हाल, तमीज, मुस्तस्ना, अफ़ाल नाक़िसा की खबर, हरुफ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म। आगे जी, इसमें देखें, मफऊल बिही, दूसरा क्या है, मफऊल मफूल बिही, मफऊल बिही, बिही, मफऊल मुतलक, मफऊल बिही। और ये हुरूफ, हुरूफ मुशब्बा बिल फ़िल का इस्म, हुरूफ मुशब्बा बिल इसा की खबर, ला नफी जिन्स का इस्म। ठीक है, और ये 12 मंसूबात, ये 12 क्या हैं, मंसूबात। इसमें से 5 तो मफूल ही होंगे, 5 तो मफऊल ही होंगे, बाकी जो है वो अलग अलग। चलिए, ये माशाल्लाह सबने याद कर लिया। मुदस्सिर भाई आए हुए हैं, मुदस्सिर भाई आपको याद है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मुदस्सिर भाई याद है आपको? जी सर, मुझे याद है सर, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट डिफरेंट है। जैसे हमने पढ़ा हुरूफ मुशब्बा बिल्लाह से की खबर, इसमें लिखा हुआ है मा व ला मुशबहतीन बिल्लाह से की खबर, जो मेरे पास बुक है सर। हुरूफ अच्छा, मुशब्बा चलिए, हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है, एक ही चीज़ है दोनों, ये आगे तफसील में आ भी जाएगा। सही है? जी, तो सबसे पहले आ जाए मफूल मुतलक का बयान। पहला क्या है, मफूल मुतलक। पहला मफूल मुतलक, उसका बयान आ जाए। मफूल मुतलक वो मस्दर है। इसका मतलब, ये जो मफूल मुतलक है ये मस्दर होगा। मस्दर आपने पढ़ा होगा सर्फ में, जिस तरह के ना, ज़रब यज़रिबु ज़रबन, ज़रबन मस्दर है। सर्फ सगीर पढ़ी होगी ना, ज़रब यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन, ज़ुरिब यज़रबु ज़रबन। अब ये जो ज़रबन आ रहा है ये मस्दर है। हर फेल का आपने मस्दर है, नस्रुन, फतहुन, ये सारे क्या है, मसादिर है। तो मफूल मुतलक मस्दर होगा। ठीक है, मफूल मुतलक की तारीफ देखें, वो मस्दर है जो अपने आमिल के माना में, जो अपने आमिल, आमिल क्या होगा, फेल होगा। आमिल क्या है, हमेशा फेल, फाइल, मफूल। मफूल पे कौन अमल करेगा, फेल अमल करेगा। फाइल पे कौन अमल करेगा, फेल। दोनों का आमिल क्या है, फेल। तो मफूल मुतलक जो मस्दर होगा, ये इससे पहले जो फेल होगा वो इसी मस्दर से होगा। ये बस अलामत ज़हन में रखें। जैसा कि देखें, जलस्तु जुलूसन, जलस्तु जुलूसन। अब जुलूसन ये मस्दर है, मफूल मुतलक है, और इस पे आमिल कौन है, जलसा। जलसा इसी मस्दर से, जलसा इसी जुलूसन से है ना। जलसा यजलिसु जुलूसन फहुवा जालिसुन। तो मफूल मुतलक वो मस्दर है जो अपने आमिल के माना में। तो मफूल मुतलक यहाँ जुलूसन वो मस्दर है जो अपने आमिल जलस्तु के माना में है। जलस्तु जुलूसन,
मैं बैठा, जुलूसन एक तरह का बैठना, एक कैफियत को बयान कर। मिसाल के तौर पे जलस्तु जुलूसन मुलूकन, मैं ऐसे बैठा जैसे बादशाह बैठते हैं, मैं बादशाहों के बैठने की तरह मैं बैठा। जलस्तु जुलूसन। मफूल मुतलक की तारीफ समझ में आ गई ना। आगे देखें, मफूल मुतलक की पहली तकसीम। मफूल मुतलक की दो किस्में। मफूल मुतलक की दो किस्में। नंबर एक, मफूल मुतलक लफ्जी। नंबर दो, मफूल मुतलक मानवी। बाज़ लफ्जी होगा, लफ्जों में नजर आ रहा होगा, और बाज़ लफ्जों में नजर नहीं आ रहा होगा बल्कि मानन होगा। मफूल मुतलक लफ्जी किसे कहते हैं? वो मफूल मुतलक है जो अपने आमिल के साथ, जो अपने आमिल के लफ्ज से हो, जो अपने आमिल के लफ्ज से हो। जिस तरह जुलूसन था ना, जुलूसन जलसा, जुलूसन जलसा उसी लफ्ज से भी है, सिर्फ माना में नहीं है, माना में भी है और माना के साथ क्या है, लफ्ज में भी है। मफूल मुतलक लफ्जी वो मफूल मुतलक है जो अपने आमिल के लफ्ज से हो, जो फेल का लफ्ज है वही मफूल मुतलक का भी लफ्ज हो। जैसा कि मिसाल ऊपर आई, जलस्तु जुलूसन। अब जुलूसन जलस्तु दोनों एक ही लफ्ज है, एक ही लफ्ज से बने हुए हैं। और मफूल मुतलक मानवी किसे कहते हैं? मफूल मुतलक मानवी वो मफूल मुतलक है जो अपने आमिल के लफ्ज से ना हो, माना से हो, लफ्ज से ना हो। जैसा कि कातु जुलूसन, कातु जुलूसन, कातु का माना भी क्या है, बैठना, और जुलूसन का माना भी क्या है, बैठना। मानन दोनों एक है लेकिन लफ्ज अलग अलग है। कि आमिल जो है वो कादा है और जो आगे मफूल मुतलक है वो जुलूसन। मानवी लिहाज से दोनों सेम है लेकिन लफ्ज के लिहाज से फर्क है। और जहां लफ्ज के लिहाज से भी फर्क ना हो तो वो मफूल मुतलक लफ्जी, और जो लफ्ज के लिहाज से फर्क हो वो मफूल मुतलक मानवी। एक तकसीम तो ये होगी, ये वाली समझ में आई, तकसीम समझ में आ गई कुछ कुछ। सर जैसे कि अब जो है एक मसादिर पे हमने जो है वो गर्दान की थी तो वो अल हशरु थी, तो अगर हम उसको लेंगे तो हम उसको कैसे करेंगे? हशरतु हाशिरन, हशरतु हाशिरन, ये वैसे ही मैंने लफ्जन बताया है, ठीक है। ठीक लेकिन है ठीक। लाजमी नहीं है कि हर लफ्ज से मफूल मुतलक भी बने, हर फेल से मफूल मुतलक भी बने, ये कोई जरूरी नहीं। सही। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं बैठना एक तरह का बैठना, खाना एक तरह का खाना, सोना एक तरह का सोना, खेलना एक किस्म का खेल। कुछ चीजें तो ऐसी हो सकती हैं। पहनना एक तरह का पहनना, बादशाह की तरह पहनना, इन सिफात में हो सकता। दौड़ना एक तरह का दौड़ना। अब ये मफूल मुतलक भी बन सकते हैं, ये मफूल मुतलक भी बन सकते हैं। लेकिन कुछ फेल ऐसे भी हो सकते हैं जो लाजमी नहीं है मफूल मुतलक हो, कि उन मसादिर से मफूल मुतलक भी बन सके, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मफूल मुतलक की पहली तकसीम तो ये होगी, मफूल मुतलक लफ्जी, मफूल मुतलक मानवी। और ये क्या नाम है, तारीफात दोनों समझ में आ गई। 2 मिनट रिवाइज करें, ये तारीफात भी रिवाइज करें और ऊपर ये एक नज़र देखें। ये फिर मैं अभी सुनता हूँ 1 मिनट ना, फिर आगे मफूल मुतलक की दूसरी तकसीम ये भी आप आज पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लें इसको, मफूल मुतलक की पहली तकसीम को रिवाइज कर लें जल्दी से, शाबाश, फिर मुझे सुना दें।
جی जिसको याद हो जाए जल्दी से सुना दे. सर मफूले मतलब वो मजदर है जो अपने आमिल के माना में हो, जैसे जलस्तु जलूसन इसकी जो है वो दो तकसीम है, एक मानवी एतबार से और एक लफ्जी एतबार से, यानी कि मफूले मतलब लफ्जी और मफूले मतलब मानवी। मफूले मतलब लफ्जी जो है वो अपने आमिल के लफ्ज से हो, वो मफूले मतलब लफ्जी है। हाँ रबी, ये मफूले मुतलक है, मुतलक मतलब नहीं पढ़े इसको. मफूले मुतलक मफूले मुतलक मफूले लफ्जी मुतलक. जो है वो अपने आमिल जी के लफ्ज शाबाश. से हो, जैसे जलस्तु जलूसन। और मुतलक 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 लफ्जी मानवी जो है वो आमिल के लफ्ज से ना हो बल्कि माने से हो, वो कातु जुलूसन। शाबाश, बेहतरीन. जी जी, और भी सुना दें जल्दी से, दीगर लोग सुना दें. मफूल मुतलक वो मसदर है जो अपने आमिल के मायने से हो, जैसे ज़रबतु ज़रबन। मफूल मुतलक की पहली तकसीम मफूल मुतलक लफ्जी और मफूल मुतलक मानवी। मफूल मुतलक लफ्जी वो जो अपने आमिल के लफ्ज से हो, जैसे जलस्तु जलूसन। और मफूल मुतलक मानवी जो अपने आमिल के लफ्ज से ना हो बल्कि मायने से हो, फ़अद्दत जलूसन। शाबाश, ठीक है, बेहतरीन. जी डॉक्टर साहब, मुदस्सिर भाई. जी सर, मफूले मुतलक वो मसदर है जो अपने आमिल के मानी में हो, जैसे ज़रब तो ज़रबन। और इसकी जो पहली तकसीम है उसकी दो अकसाम है, मफूले मुतलक लफ्ज़ी और मफूले मुतलक मानवी। मफूले मुतलक लफ्ज़ी वो मुतलक है जो अपने आमिल के लफ्ज़ से हो, जैसे जलस तो जुलूसन। और मानवी वो है जो अपने आमिल के लफ्ज़ से ना हो, जैसे कात तो जुलूसन। शाबाश, बेहतरीन. जी मुदस्सिर भाई. जी सर, मफूल मुतलक की दो किस्म है, मफूल मुतलक लफ्जी, मफूल मुतलक मानवी। मफूल मुतलक लफ्जी जो अपने आमिल के लफ्ज से हो, जैसे जलस जुलूस। मुतलक मानवी वो है जो अपने आमिल के लफ्ज से न हो, जैसे कअत तो जुलूस। शाबाश, बेहतरीन. जी अब आ जाए मफूल मुतलक की दूसरी तकसीम की तरफ. दूसरी तकसीम से हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि मफूल मुतलक क्यों लाया जाता है. मफूल मुतलक क्यों लाया, जब फेल पहले आ गया जलस्तु, तो फिर आगे जुलूसन दोबारा वही मसदर लाने की क्या जरूरत है. तो इससे आपको मफूल मुतलक की दूसरी तकसीम, मफूल मुतलक की तीन किस्में. नंबर एक ताकीदी, ताकीद जिसको हम कहते हैं. नंबर दो अददी, तादाद, अददी. नंबर तीन नौई, नौ बोलते हैं किस्म को, जिस तरह आदमी अलग किस्म है, औरत अलग किस्म है. ठीक है, अलग अकसाम. तो मफूल मुतलक की तीन किस्में हैं. नंबर एक ताकीदी, नंबर दो अददी, नंबर तीन नौई. मफूल मुतलक ताकीदी किसे कहते हैं? पहली किस्म मफूल मुतलक ताकीदी, वो मफूल मुतलक है जो अपने फेल के माना की ताकीद करे, यानी मजबूत करे उसको. जो फेल का माना है उसमें मजीद पुख्तगी ले आए. जैसे कि जलस्तु जुलूसन, मैं वाकई बैठ गया हूं. कोई कहे जी आप बैठ गए, आप बैठ जाएं. आप कहें जलस्तु, मैं बैठ गया, हो गया, आप बैठ जाएं. तो आप कहें जलस्तु जुलूसन, मैं वाकई ही बैठ चुका हूं, मैं ये काम लाजमी कर चुका हूं. तो फेल के माना की ताकीद के लिए ला पहली किस्म. नंबर दो मफूल मुतलक अददी, अददी मतलब तादाद बता रहे. वो मफूल मुतलक है जो अपने फेल के अदद को बयान करे. अपना जो फेल है, जो काम किया है, उसके अदद को, उसकी तादाद को बयान करे. जैसे कि जलस्तु जलसतन,
जलस्तु जलसतन, मैं एक बार बैठा। इसी देखो ना, जलसा, जलसा हम क्यों कहते हैं कि एक नशिस्त है, एक जगह पे लोग इकट्ठे हुए हैं किसी एक खास काम के लिए, फिर सारे लोग चले जाएंगे, इस वजह से उसको जलसा कहते हैं। तो जलस्तु जलसतन, मैं एक बार बैठा, तादाद को बता रहे। अकल तो अकलतन, मैंने एक बार खाया है, बस। ठीक है। मफूल मुतलक नौई, नौ को बयान कर रहा है। मफूल मुतलक नौई वो मफूल मुतलक है जो अपने फेल की नौइयत को बयान करे। जैसे कि जलस्तु जिलसतल उस्ताजी, जलस्तु जिलसतल उस्तादी, कि मैं उस्ताद के बैठने की तरह बैठ, जैसे उस्ताद बैठते हैं मेरे, तो मैं उस्ताद के बैठने की तरह बैठा, एक हालत को बयान किए, एक किस्म को बयान किए, मैं उस्ताद की तरह बैठा। तो मफूल मुतलक की दूसरी किस्म, मफूल मुतलक की तीन किस्में, ताकीदी, अददी, नौई। ताकीदी, पहले फेल के माना को पुख्ता करने के लिए। अददी, पहले फेल की तादाद को बताने के लिए। नौई, फेल की कैफियत या उस नौ को बताने के लिए। तो ये तीन किस्म, ये भी समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी सर, समझ में आ गई। समझ में आ गई। चलें, इसके लिए भी 2 मिनट लें आप लोग, इसको भी रिवाइज करें, फिर मुझे जल्दी से सुनाएं, फिर अगला चलते हैं। शाबाश, जल्दी से रिवाइज करके 2-3 मिनट में मुझे सुना दें जल्दी जल्दी सारे। सर मैं सुनाऊं? शाबाश। फेल मुतलक की दूसरी तकसीम, फेल मुतलक की तीन है, ताकीदी, अतादी और नोई। मफऊल मुतलक, सॉरी, मफूल मुतलक, वो मफूल मुतलक जो अपने फेल के मायने की ताकीद करे। जैसे जलस्तु जलूसन, वो फेल मुतलक जो अपने फेल के अदद को बयान करे। जलस्तु जलसतन, वो फेल शाबाश। मुतलक जो अपने फेल की नोयत को बयान करे। जैसे जलस्तु जिलसतल अस्ताज। ठीक है, तीनों के नाम बता दें। मफऊल मुतलक, मफूल मुतलक ताकीदी, मफूल मुतलक अददी, मफूल मुतलक नोई। शाबाश, बेहतरीन यास्मीन, जबरदस्त। जी रबिया। मफूले मतलब की दूसरी मफूले मुतलक मतलब की दूसरी नहीं, तकसीम, मुतलक के साथ, हाँ, मफूले मुतलक की दूसरी तकसीम ताकीदी, अददी और नौई। मफूले मुतलक ताकीदी वो है जो अपने फेल के मायने की ताकीद करे ताकि मजीद पुख्तगी पैदा हो। जलस्तु जलूसन, मैं वाकई बैठ गया। अददी जो तादाद को जाहिर करे, जो अपने फेल के अदद को बयान करे। जलस्तु जलसतन, मैं एक बार बैठा। नौई, फेले मुतलक नौई जो कैफियत को बयान करे, जो अपने फेल की नौयत को बयान करे। जलस्तु जिलसतल अस्ताजी, मैं उस्ताद की तरह बैठा। हाँ, बैठा नहीं, बैठी। जी डॉक्टर साहब, याद हो गया? जी जी सर, मफूल मुतलक की दूसरी तकसीम की तीन अकसाम है, ताकीदी, अददी और नोई। जो है ताकीदी, उसमें जो है जो वो मफूल मुतलक है जो अपने फेल के मानी की ताकीद की जो है वो मानी की ताकीद करे। जैसे जलस तो जुलूसन, मैं वाकई बैठा। और दूसरी है अददी, जो अदद को बयान करे। जैसे जलस तो जलसातन, मैं एक बार बैठा। और जो तीसरी है वो नोई है, जो नोयत को जाहिर करे। जैसे जलस तो जिलसातल जिलसाता अल उस्ताद, मैं उस्ताद की तरह बैठा।
जलस्तु जिलसतत तबीबी, मैं डॉक्टर की तरह बैठा। जी 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 मुदस्सिर भाई याद हो गया? जी सर। शाबाश, जल्दी से सुना दें। सर मफऊल मुतलक की 3 किस्में हैं, ताकीदी, अददी, नवी। ताकीदी जो अपने फ़ेल के मानी की ताकीद करे, जैसे जलस तो जुलूसन, मैं वाकई बैठा। मुतलक अददी जो अपने फ़ेल के अदद को बयान करे, जैसे जलस तो जलसतन, मैं एक बार बैठा। मुतलक नवी जो अपने फ़ाइल की कैफियत या नवियत बयान करे, जैसे जलस्तु जिलसतल उस्ताद, मैं उस्ताद की तरह बैठा। शाबाश, ठीक है, ये तो मफूल मुतलक हो गया। ठीक है, मफूल मुतलक की तकसीम भी आ गई। मफूल मुतलक जो अपने वो मस्दर है जो आमिल के माना में, जो अपने आमिल यानी फेल के माना में, ये तो हो गया। आगे आ जाए मफूल बिही का बयान। ये मफूल बिही भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा मफूल बिही। और हर जगह जो आम तौर पे होता है उसको हम मफूल बिही कहते हैं। ठीक है, बाकियों के बारे में हम कहते हैं मफूल मुतलक है, मफूल लहू है, मफूल माहू है, मफूल फीही है। लेकिन जहां मुतलक मफूल भी कह दें तो वहां क्या होता है, मफूल बिही मुराद होता है। मफूल बिही वो इसम है जिस पर फाइल का फेल वाक़या हो। मफूल बिही वो इसम है जिस पर फाइल का फेल वाक़या हो। जैसे कि नसरतु बकरन। अब नसरतु के अंदर फेल क्या है, फाइल क्या है, कोई बता दे। मुतकल्लिम है सर। इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है? सर नसर तो ये वाहिद मुतकल्लिम है। सीगा तो नसर तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, लेकिन इसमें फेल क्या है, फाइल क्या है? सर सर नसर इसमें तो नसर तो फाइल फाइल और फेल बकरन और जो बकर जो है वो फेल है। हाँ, नहीं कौन बता सर। रहा? हाँ, आवाज सही समझ में आई, किसने बताया? जल्दी बता दे, फेल क्या है, फाइल क्या है? यास्मीन क्या बता रही थी? सर ये यानी कि फाइल का फेल वाक्य हो, यानी कि नसरतु में ही फाइल है और बकरन मफूल है सर। अब बकरन को फिलहाल छोड़ देना, नसरतु का बताएं जी। अभी आप बता दें। सर नसरतों का मतलब बनता है कि की गई ना, मदद की गई, तो ये मदद की गई है मतलब है। जी ये मारूफ का सीगा है, मजहूल का सीगा है डॉक्टर साहब? जी रबिया, सर ये मारूफ का है। मारूफ का सीगा है, मारूफ का सीगा है डॉक्टर साहब। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, इतना मैं बता देता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये बता दें फेल क्या है, फाइल क्या है, आसान सी बात है। तर्जुमा क्या है, तर्जुमा बता दें, तर्जुमा कोई बता दे। सर मैंने मदद मैंने की। बकर की मदद की। मैंने मदद की। नसरतु का तर्जुमा क्या है? मैंने मदद की। मैंने मदद की। अब मैंने मदद की, इसमें बताएं फेल क्या है, फाइल क्या है? सिंपल। सर इसमें मैं जो है वो फाइल है और शाबाश, मदद फाइल की है और मदद फेल है। करना फेल। मदद फेल है और मैं ये फाइल है, इतनी सिंपल सी बात है। आप लोग इतने कंफ्यूजन में पड़े हो। नसर तो बकरन, मैंने मदद की बकर की, मैंने मदद की बकर की। समझ में आया, समझ में आया रबिया, उस्मा, क्या नाम है, मुदस्सिर भाई? सर मैं तो कहीं और जाके फंस जाती हूँ, मैं तो वहां फंस गई थी। मैं वो आपने मुझे वो याद करवाया था कि फाइल को फेल से पहले लाना जायज नहीं है, तो वो मैं उधर अटकी थी।
ادھر کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، یہ لفظ ہے، یہ فعل فاعل موجود ہے، یہ بتائیں فعل کیا ہے فاعل کیا ہے، بس سمپل سے یہ بتانا تھا. صحیح، وہ سمجھانا جو تھا وہ تو گیا، جو وہی پتہ نہیں اسی میں آپ لوگ اٹک گئے. صحیح. اچھا دیکھیں اب سمجھیں، مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اب فاعل کیا ہے اس میں؟ فاعل کیا ہے؟ نصر تو فاعل کیا ہے؟ سر یہ میں واحد متکلم کا سیکھا ہے. میں نے مدد کی نا، تو میں فاعل ہوں یار. اور میرا فعل کیا ہے؟ مدد کی، مدد کرنا. مدد کرنا. کرنا. میں فاعل ہوں، مدد کرنا فعل ہے. اب یہ فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ سر بکر فعل پر نصرتو ہے اور بکرن بکر فاعل ہے. پر بکر پر ہو رہا ہے نا سر. بکر پر واقع ہو رہا ہے نا. میں نے مدد کی، میرا یہ مدد کرنا یہ کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ بکر بکر پر سر. بکر پہ. تو فاعل کا فعل جس پر واقع ہو وہ مفعول ہے، اور وہ کون سا مفعول ہے؟ مفعول بھی ہے. دوسری مثال، اب آپ لوگ بتائیں گے، اکلتو تفاحا. اکلتو، اکلا یاکلو کھانا، اکلتو میں نے کھایا، تفاحا سیب. اب اس عقل میں جو ہے فاعل وہ کیا ہے؟ جی فاعل کیا ہے؟ عقل فائل ہے ہو گیا نا سر سر. میں عقل فاعل نہیں ہے، میں فاعل. میں ہو گیا نا. اور جو فعل ہے وہ سیب کھانا ہو گیا. فیل کھانا. نہیں، فعل کھانا ہو گیا صرف. فعل کھایا ہوا نا. اور جو ہے سیب جو ہے وہ میں نے کھایا. اب مفعول یہ ہو گیا. کھانا کس پہ واقع ہوا؟ سیب پر. سیب. تفاحا، تو مفعول کیا ہوا؟ تفاحن. سیب. تفاحا. اکلتو طعاما میں نے کھانا کھایا. اب یہ کھانے کا فعل کس پہ واقع ہوا؟ کھانے پہ. تو کھانا کیا ہو گیا؟ طعاما مفعول ہو گیا. ضربتو ناصرا میں نے ناصر کی پٹائی لگائی. اب یہ ضرب جو میرا فعل تھا مارنا، یہ کس پہ واقع ہوا؟ ناصر پہ. ناصر کیا ہو گیا؟ مفعول بھی. تو فاعل کا فعل جس پر واقع ہو، فاعل کا فعل جس پر واقع ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مفعول بھی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ پتہ نہیں آئی؟ مفعول جی بھی سر وہ آ اسم گئی. آ گئی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے نصر تو بکرن میں نے بکر کی مدد کی. اب دیکھو صرف میں آپ لوگ سیگے آپ کو صحیح طرح ذہن نشین نہیں ہے. صرف میں یہ واحد کا سیگا ہے، جمع کا سیگا ہے، فاعل کیا ہے، معروف کا سیگا ہے، مجہول کا سیگا ہے، ماضی کا سیگا ہے، مضارع کا سیگا ہے، امر کا سیگا ہے، کس کا سیگا ہے. اس میں آپ لوگ ابھی تک، حالانکہ سیکنڈ ٹرم آنے والا ہے، یہ تو اس میں آپ گرفت آنی چاہیے آپ لوگوں کو. مفعول بھی کے احکام. نمبر 1، مفعول بھی کو فعل سے پہلے لانا جائز ہے. مفعول بھی کو فعل سے پہلے لا سکتے ہیں. فاعل کو تو نہیں لا سکتے، لیکن مفعول بھی کو لا سکتے ہیں. جیسے فریقا تقتلون، تم قتل کر رہے تھے فریقاً ایک جماعت کو. تو فریقاً مفعول بھی ہے، لیکن اس کو پہلے لے آئے ہیں، کوئی لا سکتے ہیں. مفعول بھی صرف فعل متعدی کا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے. فعل لازم جو فاعل پر ختم ہو جائے، فعل لازم جو فاعل پر ختم ہو جائے، جہاں مفعول کی ضرورت نہ ہو. تو جو مفعول بھی ہوگا یہ فعل لازم کا نہیں ہوگا. مفعول بھی فعل لازم کا نہیں ہوگا. مفعول بھی کس کا ہوگا؟ فعل متعدی کا ہوگا. مفعول بھی فعل متعدی کا ہو گیا. اب میں سو گیا. اب بتائیں یہ سونا فعل لازم ہے متعدی ہے؟ سر یہ پہلے لازم ہے، بات مکمل ہو گئی سر. شاباش، فعل لازم ہے، بات مکمل ہوگی. میں سو گیا. لیکن میں کہتا ہوں میں نے کھایا. اب یہ فعل لازم ہے متعدی؟ سر متعدی ہے، بات مکمل نہیں ہوئی.
मुताद्दी अभी क्या खाया, अभी सवाल पैदा हो ना क्या खाया, लेकिन मैं सोया, अब क्या सोया ये तो कोई समझ में आने वाली बात है, बस मैं सोया बात कंप्लीट होगी। लेकिन मैंने खाया, अब क्या खाया फौरन सवाल पैदा होगा, जहां सवाल पैदा हो वो फेले मुताद्दी। और मफूल किसका आता है, फेले मुताद्दी का आता है, फेले लाजिम का मफूल भी ही नहीं आएगा। मफूल भी ही सिर्फ फेले मुताद्दी का होता है, फेले लाजिम का मफूल भी ही नहीं होता। ठीक है, चलें ये मफूल भी ही का बयान भी आ गया। इसके बाद ये मुनादा का एराब अक्सर बड़ी किताबों में आता है, इस वजह से इन्होंने मुनादा का बयान करेंगे। फिर उसके बाद आगे मफूल फी ही का बयान अगले सफ़े पे आ जाएगा। मफूल फी, फिर मफूल लहू, मफूल माहू, फिर हाल, तमीज़। तमीज़ में फिर थोड़ी सी तफसील आ जाएगी, मुस्तस्ना, फिर मुस्तस्ना की किस्में, थोड़ा सा मुस्तस्ना के अंदर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको आज यहीं तक रखेंगे, याद कर लीजिएगा। दो आज पढ़े हमने, मफूल मुतलक, मतलक नहीं, मफूल मुतलक और मफूल बिही। ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से याद। ठीक है, चलें आप आ जाएं तर्जुमे की तरफ आ जाएं, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, जल्दी से आ जाएं। शाबाश, बिल्कुल नहीं आई अभी तक। जी, कल हमारी कितनी आयत हो गई थी? जी बता दें कितनी आयत हो गई थी कल? 66 सर। हाँ शाबाश, 65 मेरे ख्याल हो गई थी, 66 से पढ़ना है आज। शाबाश मुदस्सिर भाई, जबरदस्त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़यना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिरा हाउलाइ मक़तूअन मुस्बिहीन वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाइ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़ज़हून। वक़ज़यना इलैहि, और हमने मुकर्रर कर दिया उसकी तरफ, ज़ालिकल अम्रु, ये बात, कि अन्ना, बेशक, दाबिरा हाउलाई, इन लोगों की जड़, जड़ से मुराद नस्ल, दाबिरा हाउलाई मक़तूअन, कटी हुई होगी, मुस्बिहीन, सुबह सुबह, कि इन पर सुबह सुबह अल्लाह की तरफ से क्या आ जाएगा, अजाब आ जाएगा। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, वजा और आए, जा माजी का सीगा है, वजा अहलुल मदीनति, शहर वाले, अहल कहते हैं वाले, और अल मदीना शहर। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, और मदीना वाले आए। अब देखें, जा फेल है, अहलुल मदीनती मुजाफ मुजाफिल मिलकर ये फाइल है, और आगे यस्तबशिरून ये हाल है, ये हम पढ़ेंगे अभी, ये पढ़ा नहीं है कि मदीने वाले आए इस हाल में कि वो यस्तबशिरून, के एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे थे, एक दूसरे को खुशखबरी दे रहे थे। ये कौम लूत जो थी ये गलत काम में पीछे है ना, मुब्तला थी। तो जब ये फरिश्ते आए नबी के घर में, तो ये लोग दूसरों को खुशखबरियां देते हुए आए कि वहां पे तो खूबसूरत नौजवान लड़के आए हुए हैं, तो लिहाजा सारे ये यहाँ पे इनके दरवाजे पे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे क्या हो गए, जमा हो गए। क़ाला, उन्होंने फरमाया, इन्ना हा उलाई, बेशक, इन्ना बेशक, हा उलाई, इसमें इशारा, ये सब, ये जो अंदर बैठे हुए हैं, इन्ना हा उलाई ज़ैफ़ी, मेरे मेहमान हैं। इन्ना हा उलाई, बेशक ये जो अंदर बैठे हुए हैं, ज़ैफ़ी, मेरे मेहमान हैं। फला तफ़ज़हून, लिहाजा तुम मुझे रुसवा मत करो, यानी परेशान हुए ना कि ये मेरे मेहमान आए हुए हैं, और ये मैं, उनको तो नहीं पता था पैगंबर को कि ये फरिश्ते हैं, वो तो समझ रहे थे कोई इंसान है। अब ये लोग सारे इनके दरवाजे पे जमा हो गए कि ये तो खूबसूरत लड़के आए हुए हैं, और ये कौम इस फेल में क्या थी, मुब्तला थी, जिसको हम लवातत कहते हैं। तो ये सारे वहां पे उनके दरवाजे पे जमा हो गए। अब पैगंबर मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई मुझे रुस्वा ना करो, मेरे मेहमान आए हुए हैं, तुम इनके साथ ये गलत काम करोगे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, और डरो तुम अल्लाह से। अब देख, इत्तकु फेल, इसमें अंतुम ज़मीर फाइल, और अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह मफूल, डरो तुम अल्लाह से। वला तुखज़ूनी, और मुझे रुस्वा ना करो, मेरी इज्जत खराब
نہ کرو. قالو کہنے لگے، وہ لوگ سارے کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، حمزہ استفہامیہ ہے کیا، اور لم نافیہ، اولم ننہک کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، عن العالمین جہان کی حمایت سے، کہ تم ہمیشہ لوگوں کی حمایت کرتے رہتے ہو، لوگوں کے ساتھ تم تعاون کرتے ہو. ہم نے جب تمہیں منع کیا تھا تم یہ کام چھوڑ دو، کسی کو سمجھانا، کسی کو دعوت دینا، کسی کو اپنے گھر میں بلانا، ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کیا کہ تم جہان والوں کی حمایت سے کیا آ جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن تم نے بات نہیں مانی. جب تم نے نہیں مانی اب ہم بھی تمہاری بات نہیں مانیں. قال تو لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام نے کہا، قال ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا ہوگا، بھئی تم میرے مہمانوں کے پیچھے پڑو، تم جائز کام کی طرف آؤ نا، یہ میری بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو. اگر اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو جو اصل فطرت ہے، فطرت کے مطابق تم کام کرو نا. ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو نا. تم میرے جو مہمان جو لوگ آئے ہوئے بول تو وہ گناہ ہے ویسے ہی جو تم کرتے ہو، اور اوپر سے مہمان آئے ہوئے، مہمان معزز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تم ایسا کرو، میری کیا عزت رہے گی. لعمرو کا، آپ کی عمر کی قسم، انہوں نے کہا لعمرو کا، آپ کی عمر کی قسم، انہم بے شک وہ، لفی سکرتہم اپنی مستی میں، یعمہون مدہوش، کہ وہ بالکل ایسے نشے میں جس طرح انسان ہوتا ہے نا، کہ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. یہ تو خیر بات کی بات قرآن نے بیان فرمائی، لیکن اس سے پہلے پھر فرشتے جو تھے انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ چھوڑ دیں گے. تو جیسے ہی وہ آنے لگے تو ایک فرشتے نے ہلکا سا پر مارا تو وہ سارے قوم وہ دور جا کے کیا ہوئی، گری، اور پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت نہ ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا، اور پھر رات کو لوط علیہ السلام وہاں سے کیا ہوئے، روانہ ہوئے، جس طرح کے پیچھے تذکرہ آیا کہ اپنی گھر والوں کو لے کے، گھر والوں سے مراد جو ان کے پیروکار تھے ان سب کو لے کے نکلے. ان کی اہلیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا تو وہ وہیں پتھر بن گئی، یعنی وہیں جم گئی تھی، اور باقی سارے لوگ کیا ہو گئے تھے، وہاں سے نکل گئے. پھر صبح اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جو اب تذکرہ آ رہا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پھر پکڑا ان کو، اخذ یاخذ لینا، مطلب یہ کہ ان کو پکڑ لیا، الصیحہ چیخ نے، مشرقین صبح صبح، مشرق یعنی سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ایک چیخ آئی اللہ کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. ایک تو یہ ان پہ عذاب ہے، دوسرا فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے بنا دیا ان کے اوپر کو ان کے نیچے، مطلب کہ ایک فرشتے نے ان کی بستی کو پر پہ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ اوپر اونچا آسمانوں تک لے کے گیا، پھر الٹا ان کو پٹخ دیا. تو وہ ہے فجعلنا، ہم نے کر دیا یا بنا دیا، عالیہا ان کے اوپر کو، سافلہا ان کے نیچے، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، حجارتم من سجیل، نوکیلے پتھروں سے یا بجنے والے پتھروں سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کھنکر، تو ان پتھروں کی ہم نے ان کے اوپر بارش نازل فرمائی. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، ان بے شک فی ذالک اس میں، یعنی ان واقعات میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، المتوسمین دھیان کرنے والے، سوچنے والوں کے، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس طرح کے واقعات میں نشانیاں ہیں کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانا،
اللہ نے उन पर आज़ाब तरह तरह के नाजिल फरमाए। तो ए लोगो, अगर तुम भी अपने नबी के बात को नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला का अजाब तुम पर भी आ सकता है। व इन्नहा लबी सबील मुकीम, और ये व इन्ना बेशक ये हा ज़मीर बस्ती की तरफ लौट रही, और ये बस्ती जो है अलबत्ता लबी सबील मुकीम, सीधे रास्ते पर वाक़। ये शाम वगैरह की तरफ ये जब मुशरिकीन वगैरह ये तिजारत की गर्ज से जाया करते थे तो जहाँ से रास्तों से गुजरते थे उसी रास्ते के करीब ही इनकी बस्तियां क्या हैं, वाक़या हैं। सबको पता है कि ये फलां की बस्तियां हैं, यहाँ पे ये अजाब आया था, देखते भी हैं। इन नफी ज़ालिका, बेशक इनमें यानी इन चीज़ों में लआयतन, निशानियां हैं, लिलमुमिनीन, ईमान वालों। इन वाक़यात में, इस तरह की चीज़ों में मोमिनीन के लिए भी निशानियां हैं, और जो अकल रखते हैं, समझ रखते हैं, उनके लिए भी क्या है, निशानियां। व इन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन, व इन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन, और ऐका वाले, ऐका का तर्जुमा बन वाले भी किया जाता है, और बन असल में कहता है, कहा जाता है घने जंगलात को, जिस तरह घना जंगल होता है तो उसको बन कहा जाता है। तो असहाब वाले, असहाबुल ऐका, बन वाले, जो हो सकता है ये जिन बस्तियों में रहते हो, जिन जगहों पे रहते हो, वहां पे यानी दरख्त ही दरख्त हो, जिस तरह जंगल होता है इस तरह का। वह इनकान असहाबुल ऐकत लज़ालिमीन, और अलबत्ता तहकीक बन वाले या ऐका वाले या घने दरख्तों वाले लज़ालिमीन, अलबत्ता जालिम, अलबत्ता क्या थे, जालिम थे। फंतक़मना मिनहुम, फंतक़मना, हमने इंतकाम लिया, मिनहुम, उनसे। व इन्नहुमा लबी इमामिम मुबीन, और ये दोनों, ये जो पिछले जिनका तस्करा हुआ कौम आद का और ये ऐका वाले, इनका लबी इमामिम मुबीन, ये दोनों खुले रास्ते पर वाक़या हैं। लबी इमाम मतलब सामने, मुबीन मतलब खुले, कि ये दोनों बस्तियां खुले रास्तों पर क्या हैं, वाक़या हैं। हर आने जाने वाला इन बस्तियों को देख सकता है, उनको पता है यहाँ कौन कौम है आबाद। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, कज़्ज़ब झुटलाया, कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु तकज़ीब करना मतलब झुटलाना। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्री, और अलबत्ता तहक़ीक़ हिजर वालों ने झुटलाया, अल मुरसलीन, भेजे हो, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा है। वलक़द कज़्ज़ब, और अलबत्ता तहकीक झुटलाया, अस्हाबुल हिजरी, हिजर वालों ने, हिजर वैसे पत्थर को कहते हैं, अल मुरसलीन, भेजे हुओं को, रसूलों को। हालांकि उनकी तरफ तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, तो रसूलों का इसलिए तज़किरा आया कि एक रसूल की तकज़ीब सबकी तकज़ीब है, कि कोई अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता है, इसका मतलब वो किसी भी नबी को नहीं मानता। एक पैगंबर की तकज़ीब सबकी तकज़ीब। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और अलबत्ता तहकीक झुटलाया पत्थर वालों ने, अस्हाबुल हिज्र, हिज्र वालों ने, पत्थर वालों ने, मुरसलीन, रसूलों को। व आतैनाहुम, हमने उनको दी थी, व आतैना, आतैना हुम, आतायुती ईता, आतैना मुतकल्लिम का सीगा है, हमने दी, हुम उनको, आयातिना, अपनी आयात, हमने उनको दी, आयातिना, अपनी आयात, फ़कानु अनहा मुअरिज़ीन, पस वो, फ़कानु, पस वो, अनहा, उन निशानियों से, मुअरिज़ीन, एराज करने वाले, उन निशानियों से क्या करने वाले थे, एराज। कि हमने हिजर वालों को, कौम सालेह को हमने निशानियां दी थी, लेकिन वो अनहा, उससे मुअरिज़ीन, एराज करते थे। वकानु यनहितूना, हालांकि वो लोग ऐसे ताकतवर थे, वकानु, और वो लोग यनहितूना, तराशते थे, यनहितूना मिनल जिबाली, पहाड़ों से, पहाड़ों से मतलब पहाड़ों को तराशते थे, बुयूतन, घर बनाने के लिए, आमीनीन, इत्मीनान से, अमन से।
कि एक तो है ना मुशक्कत करके, लेकिन अल्लाह ने उनके हाथों में ऐसी सलाहियत दी थी कि हाथों से ही पत्थर, यानी इतने ताकतवर थे, पत्थर को तोड़ के, पत्थरों को तराश के जिस तरह हम मट्टी से बना सकते हैं, तो वो पत्थरों से क्या करते थे, तराश तराश के पत्थरों को पहाड़ों के अंदर अपने घर बना लेते। अल्लाह ने ऐसी ताकत उनको अता फरमाई। वकानु यनहितून मिनल जिबालि बुयूतन आमिनीन, और वो पहाड़ों को तराश कर अमन से, इत्मीनान से अपने घर बना लेते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला की बात को नहीं माना तो उन पे अजाब आया, तो फ़अख़ज़तहुमुस्सयहतु मुस्बिहीन, बस पकड़ा उनको एक चीख ने, चिंगाड़ जिसको हम बोलते हैं ना, एक चीख ने पकड़ा, मुस्बिहीन, सुबह सुबह के वक्त। फ़अख़ज़तहुमुस्सयहतु मुस्बिहीन, बस एक चीख ने उनको आ पकड़ा सुबह के वक्त। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, फमा अग़ना, बस कोई फायदा नहीं दिया, अन्हुम उनको, माँ उन चीज़ों ने, कानू यक्सिबून जो वो कमाते थे या जो वो करते थे। जो काम ये करते थे, जो ताकतवर थे, ये पहाड़ों को तराश लेते थे, इतने बड़े बड़े काम कर लेते थे, लेकिन इसने उनको कुछ फायदा नहीं दिया, क्योंकि पैगंबर की बात को उन्होंने नहीं माना। वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़ना, और हमने पैदा नहीं किया, समावात आसमानों को, वल अर्ज़ और ज़मीनों को, वमा बैनहुमा और जो इन दोनों के दरमियान है, बैन दरमियान, हुमा इन दोनों यानी आसमान और ज़मीन के जो दरमियान है, इन तमाम को हमने पैदा नहीं किया, इल्ला बिल हक़, मगर किसके साथ, हक़ के साथ, हिकमत के साथ, मकसद के साथ। व इन साअत लआतियतुन, और बेशक साआ क़यामत, और बेशक क़यामत, लआतियतुन अलबत्ता आने वाली, लाम का तर्जुमा अलबत्ता ताकीद के लिए, आतियतुन आने वाली, व इन साअत लआतियतुन, और क़यामत आने वाली है, लिहाजा आप ये पैगाम इनको बता दीजिए, मानते हैं सही है, नहीं मानते तो फस्फहिस सफ़हल जमील, तो आप किनारा कशी इख्तियार कीजिए, खूबसूरत तरीके से किनारा कशी इख्तियार करना। सवाल पूछ लो यहाँ पे। जी सर। जी, क्या सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे? शाबाश। फस्फहिस सफ़हल जमील, आज का सबक। सर ये मंसूबात मफूल मुतलक है। शाबाश, आज यास्मीन बता रही हैं, रबिया नहीं बता रही। डॉक्टर साहब, देखिए फस्फहिस सफ़हा, as-सफ़हा ये मफूल मुतलक है, क्योंकि ये अब इससे पहले जो आमिल है फस्फा, उसी से लफ्ज के लिहाज से मफूल मुतलक। अच्छा, मफूल मुतलक तो बताया, एक तो मफूल मुतलक, दूसरा मफूल मुतलक लफ्जी है। जो दो किस्में थी ना, मफूल मुतलक लफ्जी और मफूल मुतलक मानवी, लफ्ज के एतबार से भी मफूल मुतलक है। अच्छा, मफूल मुतलक की जो तीसरी किस्म थी, ताकीदी, नौई और अददी, उसमें से कौन सी किस्म है? ताकीदी। ताकीदी, जी शाबाश। और कोई? जी, और कोई तुक्का मार दे।
جی اور کوئی بیان کر دے، شاباش. سر تاکیدی. تاکیدی، جی شاباش. اور کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں کلاس میں؟ جی جی سر موجود ہوں. تاکیدی. تاکیدی، جی ربیہ ناز موجود ہیں؟ جی سر موجود ہوں. جی تاکیدی لفظی یا معنوی یا نوعی؟ فاصفح الصفح الجمیل، نوعی ہے نا، ایک قسم کا، یعنی اچھے انداز سے، خوبصورت انداز سے کنارہ کشی اختیار کر. فاصفح الصفح الجمیل، پس آپ کنارہ کشی اختیار کیجئے، اچھی طرح کنارہ کشی اختیار کرنا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب. ان ربک، اب دیکھیں ان حروف مشبہ بالفعل، ربہ کا مضاف مضاف الیہ مل کر ان کا اسم. اسی وجہ سے دیکھیں ربا، با کے اوپر زبر آئی ہے. کیوں؟ حروف مشبہ بالفعل کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی وہی پیدا کرنے والا اور وہی جاننے والا، وہی پیدا کرنے والا وہی جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. چلیں پھر اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ٹائم ہو گیا. یہ پھر انشاءاللہ کل یہ کوشش کرتے ہیں اس کو ختم بھی کر دیں اور تھوڑا سا آگے بھی کوشش کریں گے پڑھنے. سبعا من المثانی، سبعا 7 من المثانی، قرآن مجید کی، قرآن مجید کی 7 آیات، اس سے مراد سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، چلو یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم نحو پڑھتے ہیں نا، نحو، تو ترجمے میں اس کو بھی ساتھ ساتھ غور کیا کریں. ٹھیک ہے، کہ اسم بن رہا ہے، فعل بن رہا ہے، حرف بن رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول بہ ہے، فاعل ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ غور کیا کریں. اشارتاً میں تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی بتا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور کیا کریں انشاءاللہ، پھر اس سے ہماری نحو میں گرفت کیا ہوگی، آہستہ آہستہ مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہیں تک رکھتے ہیں آج. ٹھیک ہے، یاد کر لیجیے گا، کلاس لیفٹ کر دیں بھلے. اللہ حافظ.